السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا، پس کھاؤ، منہا، اس سے، حیث، جہاں سے، شئتم، چاہو تم، رغداً، بافراغت، وادخلوا الباب، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، ہمیں بخش دے، نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تمہیں، تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ، اور ہم ان قریب زیادہ دیں گے، محسنین، احسان کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، پس بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولاً، بات کو، غیر الذی، اس سے جو نہیں کہی گئی تھی، غیر الذی، اس بات کے، قیلا، کہی جاتی، لہم، ان کے لیے، فَأَنزَلْنَا، پس اتارا ہم نے، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، بس سبب اس کے، کانو، تھے وہ، یفسقون، فسق کرتے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب، پس کہا ہم نے، مار، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کو پتھر پہ، فَانفَجَرَتْ، پس پھوٹ پڑے، مِنْهُ اثْنَتَا، مِنْهُ، اس سے، اثنتا عشرۃ، 12 عینا، چشمے، قد، تحقیق، علما، جان لیا، کل اناس، تمام لوگوں نے، مشربہم، اپنی پینے کی جگہ کو، یا اپنا اپنا گھاٹ، کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا، اور نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرتے ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہرگز نہ ہم ایمان لائیں گے، لکا، تجھ پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً، اعلانیہ، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تمہیں بجلی کے عذاب نے، وَأَنْتُمْ، اور تھے تم، تنظرون، دیکھتے،
सुम्मा फिर बासनाकुम जिंदा किया हमने तुमको मिन बादि मौतिकुम तुम्हारी मौत के बाद लअल्लकुम शायद के तुम तशकुरून शुक्र करो वज़ल्ललना और साया किया हमने अलैकुमुल गमामा तुम्हारे ऊपर बादल का व अंजलना और उतारा हमने अलैकुमुल मन्ना तुम्हारे ऊपर मन व सलवा और सलवा कुलू खाओ मिन तय्यिबात इन पाकीज़ा चीजों से मा रज़क़नाकुम जो रिज़्क़ दी हमने तुमको वमा ज़लमूना और नहीं जुल्म किया उन्होंने हमारे साथ वलाकिन और लेकिन कानू थे वो अनफुसहुम अपनी जानों पर यज़लिमून जुल्म करते। कल वाले सबक में हमने देखा कि किस तरह जो है वो 70 सरदार 70 उलमा बनी इसराइल के जो हैं वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गए थे पहाड़ के ऊपर कि अल्लाह ताला जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कलाम करते थे कि उसके बदले में वो ईमान लेके आएंगे, लेकिन उन्होंने जो है उधर बोल दिया कि हम जो है तब तक ईमान नहीं लेके आएंगे जब तक हम अल्लाह ताला को एलानिया तौर पर देख ना लें। तो उनकी इस गुस्ताखी की वजह से उनके ऊपर अल्लाह ताला ने कड़क का अजाब जो है वो भेज दिया और उस अजाब को ये देखते थे। फिर उस अजाब के नतीजे में ये सारे के सारे जो हैं वो फौत हो गए, इनकी जानें कब्ज हो गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि मैं जाके अपनी कौम को क्या बताऊंगा कि जो मैं इनके सरदारों को इनके उलमा को लेकर गया था उनका क्या हशर हुआ। तो अल्लाह ताला से दुआ करने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें फिर जिंदगी दी। इसलिए जिंदगी की कि वो अल्लाह ताला के ना शुक्र ना बने बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने खास तौर पर बनी इसराइल को उनसे पहले जितनी भी अक़वाम गुजरे थे उन सब के ऊपर फजीलत दी थी और अपनी नेमतों की बारिश कर रखी थी। और उन्हीं नेमतों की बारिश का अल्लाह ताला ने उनमें से एक का जिक्र किया, वज़ल्ललना और साया किया हमने अलैकुमुल गमामा उनके ऊपर बादल का, व अंजलना और तारा हमने अलैकुमुल मन्ना व सलवा उनके ऊपर मनो सलवा। यानी मनो सलवा के नतीजे में उनको कोई खास मेहनत करके खाने के लिए कोई कमाना नहीं पड़ता था, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वो अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर एक खास इनाम था। कुलू खाओ मिन तय्यिबात इन पाकीज़ा चीजों से मा रज़क़नाकुम जो रिज़्क़ दिया हमने तुमको व मा ज़लमूना और नहीं जुल्म किया उन्होंने हमारे साथ। यानी अब इन चीजों में जो ज्यादती कर रहे थे या जो अहकामात के ऊपर पूरा नहीं उतरते थे या जो ईमान नहीं लाते थे उस चीज का जुल्म इन्होंने अल्लाह ताला कहते हैं हमारे ऊपर नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये जुल्म किसके ऊपर किया, अपनी ही जानों पर जुल्म किया। और आज के सबक के अंदर चूंकि ऐसा हुआ था कि जब इन्होंने फिरौन से निजात हासिल कर ली तो वादी तिया के अंदर जो है इनकी रिहाइश होगी। तो लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के थ्रू इनसे जो वादी मुकद्दस का वादा कर रखा था उसके लिए इनको जिहाद करने की जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला तो बनी इसराइल ने इनकार कर दिया कि हम जिहाद नहीं करेंगे। यानी इन्होंने बुज़दिली दिखाई। तो जब बुज़दिली दिखाई तो तब अल्लाह ताला ने इनको सजा के तौर पर इसी वादी तिया के अंदर 40 साल तक जो है वो भटकने दिया। अब फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत यूशा बिन नून को जो है वो नबूवत मिली तो उस नबूवत जब वो नबी बने तो उनकी मैयत में फिर अल्लाह ताला ने इनको फतह अता फरमाई उस वादी की, उस मुकद्दस वादी की, जो कि मुकद्दस वादी जो है बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द है। बहुत से मुफस्सिरीन ने रिहा वादी का भी जिक्र किया, लेकिन बहुत मोतबर बात यह है, बाकी सूरतों में जैसे सूरत मायदा में आया और सूरतों में आया उससे यही पता चलता है कि वादी मुकद्दस जो है बैतुल मुकद्दस वाला एरिया था। तो उस जगह को अल्लाह ताला ने इनको फतह नसीब फरमाई हजरत यूशा बिन नून के दौर में। तो तब जब इनको फतह नसीब फरमाई और ये जिहाद हुआ बेकायदा, और उस जिहाद वाले दिन ऐसा मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह ताला ने
सूरज को जो है उस दिन ज्यादा देर के लिए जो है वो रखा, गरूब लेट किया, ताकि ये जंग का फैसला हो सके और इनको फतह नसीब हो जाए। अब उसके बाद जब इनको फतह नसीब हो गई तो इन्होंने जो है वो दाखिल होना था अब उस बस्ती के अंदर जिसका जिक्र इधर है, वैस्कुल नदखुलू हाज़िहिल करियता, और जब कहा हमने दाखिल हो जाओ हाज़िहिल करियता, इस बस्ती में, फकुलू बस खाओ मिनहा, उससे, हैसु जहां से शी तुम चाहो तुम, रागादन बा फरागत। अब उनके लिए एक महसूस जगह नहीं रह गई थी, वो पूरी बस्ती इनको मिल गई थी, फतह हो गई थी। अल्लाह ताला ने बोला कि इसके अंदर से जो रिज़्क है वो जिस जगह से मर्जी खूब आराम सुकून से खाओ। रागादन का मतलब होता है बाफरागत, यानी खूब वेले होके सिर्फ खाना है और कोई काम नहीं, ठीक है, बाफरागत खाओ। वदखुलुल बाबा, लेकिन उसके साथ एक शर्त अल्लाह ताला ने लगा दी कि जब उस बस्ती में दाखिल होना है, बस्ती के दरवाजे में जब दाखिल होना है, बाब दरवाजे को कहते हैं, वदखुलुल बाबा, और दाखिल हो जाओ दरवाजे में, हालत किसमें, सुजदा, सजदा करते हुए, यानी आजिजी की हालत में, सजदे की हालत में दाखिल होना है, ठीक है, इतराते हुए दाखिल नहीं होना, सजदे की हालत में, हशू की हालत में, आइजी की हालत में दाखिल हो जाओ। और कहना क्या, वकुलू, और कहो, हित्ततुन, हमें बख्श दे, नगफिर लकुम, हम माफ कर देंगे तुम्हारे लिए, खतायाकुम, तुम्हारी खताओं को। यानी अल्लाह ताला ने वो बस्ती तो फतह करवा दी, और बस्ती फतह करवाने के बाद साथ ही अल्लाह ताला ने ये भी कह दिया कि उस बस्ती में आप खाना जिधर से दिल करेगा उधर से खाना, सिर्फ खाना, बाफरागत होके खाना, लेकिन शर्त क्या लगा दी कि जब उस बस्ती में दाखिल होगे तो आजिजी के साथ दाखिल होना है, हशू हजू के साथ दाखिल होना है, सजदे की हालत में दाखिल होना है, और साथ में अपने गुनाहों की माफिया अल्लाह ताला से मांगनी है। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि हम तुम्हारी खताओं को मुआफ कर देंगे। और मुआफ करने के बाद फिर अल्लाह ताला ने बोला, वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और अन करीब बहुत जल्द हम ज्यादा देंगे एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को। अब जिस तरह इधर वदखुलुल बाबा सुज्जदन है कि दाखिल हो जाना दरवाजे में आयती के साथ, सजदे के साथ, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब फाते मक्का बन के मक्का में दाखिल हुए थे तो इसी तरह जाके नमाज शुक्र अदा की थी, उधर 8 रकात नमाज अदा की थी, जिससे जो है वो आजिजी शो करनी थी, आजिजी का इजहार करना होता था। लेकिन इसके अगली आयत में बनी इसराइल का क्या जिक्र आया, फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू, फिर बदल दिया उन लोगों ने, किन लोगों ने, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, कौलन, बात को, बात क्या थी, यानी जो अल्लाह ताला ने बोला वदखुलुल बाबा सुज्जदन, उस बात को उन्होंने बदल दिया, किस बात से, गैरल्लज़ी, उससे जो कीला कही जाती लहम, उनके लिए, यानी जो बात उनके लिए कही नहीं गई थी उस बात से उन्होंने बदल दिया। यानी क्या उन्होंने बदला, जैसे कि बोला गया था कि सजदा करते हुए बस्ती के अंदर दाखिल होना, लेकिन उन्होंने सजदा करते हुए बस्ती के अंदर दाखिल नहीं हुए, बल्कि वो घसीटते हुए अपनी शरीनों के बल बैठ के घसीटते हुए अंदर दाखिल हुए। जबकि जो कोई भी सजदे की हालत में होता है तो उसका सर झुका होता है, उसका सर झुका होता है, आजिजी से झुका होता है। चूंकि सजदे की हालत में मुफस्सिरीन कहते हैं चला नहीं जा सकता, तो सजदे की हालत में मुमकिन नहीं दरवाजे के अंदर जाना, तो इस सजदे से मुराद रकू की हालत है, आजिजी की हालत है, खुशू की हालत है, तो उस हालत में दाखिल होना था। लेकिन इन्होंने उस बात को बदल दिया और उसके उल्ट किया, और इन्होंने क्या किया, अपनी शरीनों के बल बैठकर जो है वो अंदर दाखिल हुए। और अब होता क्या है, जब बंदा रुकू या सजदे में होता तो सर झुका होता है, लेकिन जब शरीनों के बल बैठा होगा तो गर्दन उठी होती है ऊपर की तरफ, सर ऊपर की तरफ उठा होता है, यानी झुका नहीं होता। एक अकड़, इतरा, यानी अंदर जो है इतराने वाली जो चीज है वो आ जाती है।
अब फिर जब ये हुआ तो उसका नतीजा क्या निकला, फानजलना, पस नाज़िल किया हमने अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, रिजज़न, अज़ाब, मिनस समाई, आसमान से। अब इधर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इनके ऊपर ताउन की बीमारी जो है वो बतौर अजाब जो है इनके ऊपर नाज़िल फिर अल्लाह ताला की तरफ से हो गई। बिमा, बस सबब इसके, कानू थे या सुकून फिसक करते, वइस, और जब इस, अच्छा अब हमने पीछे जो 2 आयतों में हमने देखा वो इधर रकू, छठा रकू खत्म हो गया, आगे 7वां रकू स्टार्ट हो गया। पीछे हमने 2 आयतों में देखा तो 2 आयतों में जिक्र है बस्ती को फतह करने का, यानी बस्ती फतह करके तो उसके बाद उसके अंदर जाने की बात हुई। तो जबकि हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जब वफात वाला पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ख्वाहिश का इजहार किया था कि मुझे बैतुल मुकद्दस के कम अज कम जितनी दूर पत्थर फेंकते हैं उतने नजदीक जो है वो दफन किया जाए, उतने नजदीक मुझे मौत आए। तो वो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली थी। तो इस आयत से भी हमें ये पता चलता है कि ये वाकया जो है ये हजरत मूसा के बाद के हैं। लेकिन इसी के साथ अब जब 7वां रकू शुरू हुआ तो अगला वाकया जो शुरू हो रहा है वो पुराना पीछे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ था उसका जिक्र हो रहा है, उसकी याद, उस नेमत की अल्लाह ताला याद करवा रहे हैं बनी इसराइल को। वाइज, और जब वाइज तस्का, और जब पानी मांगा मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिकौमी ही, अपनी कौम के लिए, फकुल नज़्रिब, बस हमने कहा मार भी असा कल हजर, अपने असा को पत्थर पर। यानी जब इनको पानी की जरूरत पड़ी थी तो पानी जब इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मांगा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी अल्लाह ताला से मांगा तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक मोइज़ा भी जाहिर किया और एक पत्थर के ऊपर कह दिया कि इस पत्थर के ऊपर असा मारे और इससे पानी जो है वो निकल आएगा। फिर उस पत्थर के अंदर से फन फजरत मिन हुस्नता अशरा, यानी उस पत्थर से फिर 12 चश्मे जो है वो फूट पड़े। अब 12 चश्मे क्यों फूटे? 12 चश्मे फूटने की वजह ये थी कि इनके कबाइल बनी इसराइल के जो थे वो 12 कबाइल थे, तो 12 चश्मे फूट पड़े ताकि ये 12 चश्मे जो है हर कोई अपने अपने चश्मे को पहचान ले और लड़ाई झगड़ों में ना पड़े। कद तहकीक अलीमा, जान लिया, कुल्लू नास, इन तमाम लोगों ने, मशरबहुम, अपने अपने गाठ को, यानी अपने अपने पीने की जगह को उन्होंने निशानियां लगा ली, पहचान लिया। मुफस्सरीन इधर लिखते हैं कि ये जो पत्थर था ये पत्थर था 4 साइडों वाला पत्थर था, तो इस पत्थर की हर साइड से जो है वो 3 चश्मे निकल आए और 3-3 चश्मे, इस तरह ये 12 चश्मे बन गए। और फिर ऐसा था कि इस पत्थर को मूवेबल था, उठा के किसी जगह के ऊपर भी जाते तो इसको साथ ले जाते और उधर फिर इससे पानी लेते रहते। कुलू वशरबू, खाओ और पियो, मिर रिज़्किल्लाह, अल्लाह के रिज़्क से, वला तासऊ, और ना फिरो, फिल अर्ज़ि, ज़मीन में, मुफसिदीन, फसाद करते हुए। और फिर साथ में ये फरमाया कि ठीक है जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं, इधर मनो सलवा दिया था उसको खाओ और पानी को पियो, ये नेमतों को, खाने पीने वाली चीज़ों को इधर अल्लाह ताला ने में रिज़्किल्लाह, अल्लाह के रिज़्क से, वला तासऊ, और ना चलो, फिल अर्ज़ि, ज़मीन में, मुफसिदीन, फसाद करते हुए। कल एक सवाल आया था जी, एक तो वो आया था वादी तिया का, वो लिख के भेजना था तो वो भेज दिया मैंने, जो है तस्वीर खींच के भी भेज दी, तो वो पूरा नक्शा बकायदा उस इलाके का वो भी भेज दिया था। दूसरा एक और सवाल आया था कि क्या फरिश्तों को देखा जा सकता है, तो उस सिलसिला में इस तरह वैसे तो ग्रुप में जवाब दे दिया था, तो चलो इधर भी जवाब दे देते हैं। एक तो ये है कि जो लोग यूट्यूब वगैरह से इस्तेफादा करते हैं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी और उनको भी पता चल जाएगा। वैसे तो अंबिया इकराम जो है वो फरिश्तों को देखते हैं
اور فرشتوں کی اصل حالت کے اندر انبیاء کرام نہیں دیکھتے. کوئی ایک آدھا واقعہ ایسا ہوگا کہ جس میں انبیاء کرام نے صحیح حالت میں دیکھا ہوگا. ویسے جو ہے فرشتے جب کسی اور شکل کے اندر آتے ہیں، مثلا یا انسانی شکل کے اندر آتے ہیں، تو تب سارے انسان جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس ایک دلیل کے طور پہ ایک حدیث جبریل ہے، جس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ایک سفید کپڑوں کے اندر ملبوس دور کا سفر کرتے ہوئے ایسے لگتے تھے آئے تھے، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل ساتھ بیٹھ کے سوالات شروع کر دیے، جن سوالات میں یہ تھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. اسی طرح سوال کرتے کرتے پھر ان کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے رہے. جواب دے کے پھر وہ اٹھ کر چلے گئے. اس میں انہوں نے تقدیر کا بھی پوچھا، قیامت کا بھی پوچھا، قیامت کب آئے گی. تو یہ سارے سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیے. قیامت کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا ہی بولا کہ پوچھنے والا جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے اس سے جس سے پوچھا جا رہا ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ شخص کون تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو کہ اس لیے آئے تھے کہ تمہارا دین تمہیں سکھا سکے. تو اس حدیث سے ہمیں جو ہے یہ پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا. میرا خیال ہے کلاس کا اختتام کرتے ہیں، یا اگر کسی کا کوئی سوال ہو 1-2 منٹ کے اندر. من سلوا والی آیت کی تشریح کے دوران وہ آواز بند ہو گئی تھی، اس کی تھوڑی سوال دوبارہ سے ریپیٹ کیجئے گا، آواز نہیں آئی. سوال دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں، آواز نہیں آئی. من سلوا کی آیت کی تفسیر تھوڑی سی دوبارہ کر دیں. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ کل کریں گے، کل دوبارہ کر دیں گے. ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ وہ ہوگا یہ پیچھے جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ بھی پھر سیو نہیں ہوگی. کل انشاءاللہ ہم اس کی دوبارہ کر دیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز. ٹھیک ہے جی، ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.